Welcome students in our family, that is New Udan classes. New Udan classes that is fully devoted to make your selection in your competitive examination. That is maybe veterinary, Punjab veterinary inspector or livestock assistant in different states. Okay, myself Dr. Gaurav Jain. I am here to guide you in veterinary gynecology, and I am promising you that no question will come out of my lectures. I am fully try my best to make your selection or that each and every question of your examination will come out of my lectures. Okay, all the best to all of you, all the best to each and every student. You will try your best and I am trying my best. I am giving my 100%, you are also give your 100%. Okay, all the best. Now we are starting our lectures, that is veterinary gynecology. First of all, we are going for what is the definition of veterinary gynecology. Okay, the branch of medicine in which the physiology and the pathology of female reproductive organs of female animals are studied is called veterinary gynecology. Okay, that is what is veterinary gynecology. Veterinary means that is something that is related with the animals, and gyne means that is something that is related with the females. Okay, so it is the branch of medicine in which the physiology that means the different aspect of the female reproductive system, the different conditions of the female reproductive system. Okay, and the pathology means the different diseased condition, what kind of disease is there, what kind of changes will come in their reproductive system in different situations and different diseased condition. That's why the physiology and pathology of female reproductive organs of female animals are studied in veterinary gynecology. Okay, now understand what we will study in the veterinary gynecology. There are two aspects. Okay, the one thing is the physiology. The simple meaning of the physiology, that we will study about the each and every part of the female reproductive system. That is maybe ovary, that is maybe fallopian tube, that is maybe a uterus, that is maybe cervix. We will study about each and every part and the functioning of each and every part. You will have to understand it. What function will the ovary perform in the female reproductive system? What function will the fallopian tube will perform? What function is performed by the uterus? We will study about each and everything. Okay, and then after that the pathology means if any kind of change that will occurs in the ovary, we will study about that. If any kind of change means the deterioration from the normal, okay, in the uterus, in the ovary, in the fallopian tube, in the vagina, in the cervix, in the vulva, any part of the reproductive system, if any deterioration from the normal thing, we will study in the pathology. Okay, so that's why that it is whole and soul about the branch of the medicine in which the physiology and pathology of female reproductive organs of female animals are studied, that is called veterinary gynecology. The father of gynecology is James Marion Sims. Okay, now we will move forward. The first thing, veterinary obstetrics, the branch of the medicine that deals with the gestational period, parturition and postpartum stages of the female. Okay, veterinary obstetrics in which we studied about the gestational period. What do you understand by the gestational period? Okay, the stage from the fertilization till towards the parturition. Okay, gestation, what do you mean by the gestation? A period from the fertilization where the sperm and ova match, okay, and they will fertilize with each other. The term that is termed as fertilization. Okay, and from till the parturition, the whole time period that is known as gestation period. In simple, हम कह सकते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन से लेकर जब डिलीवरी या पार्चुरेशन होता है वहां तक का टोटल जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड कहते हैं. और एंड टिल द पार्चुरेशन each and every changes in the fetus, in the embryo, what kind of changes will occur
वी विल स्टडी अबाउट दैट, किस तरीके के चेंजेस आते हैं फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइकोट बनता है, ओके, जाइकोट से लेकर हम जब वो कंप्लीट एक बेबी बनकर रेडी होता है और पार्चुरेशन होता है, वहां तक की जो कंप्लीट जो स्टडी होगी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अपन उसके बारे में पार्चुरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और पोस्टपार्टम क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो दैट इज द वेटरनरी ऑब्स्टेट्रिक्स। व्हाट इज वेटरनरी एंड्रोलॉजी? The branch of medicine in which the physiology and pathology of male reproductive organs are studied. So, what do you mean by the veterinary andrology? Veterinary andrology is just opposite to the veterinary gynecology, in which the veterinary gynecology we are studying about the female reproductive system, the physiology and pathology of the female reproductive system, and in the veterinary andrology we will study about the physiology and the pathology of the male reproductive system. Now you have to understand, we are already discussed about the physiology. Physiology means the what kind of structure is there, what kind of work performed by that organ, means in a what function will be performed by the Sertoli cells, what performed by the testis, the epididymis, and the various organ, the penis, the etc etc. And the pathology, what kind of changes will occur, like disease condition, we will study about that, okay. And also we will discuss the artificial insemination in this chapter. Veterinary andrology, the branch of the medicine in which the physiology and pathology of male animal reproductive organs and artificial insemination etc are studied. The third thing is veterinary thyrogeniology, the branch of medicine in which andrology, gynecology, obstetrics and artificial insemination etc are studied. Now if we mix the both, the veterinary gynecology and the veterinary andrology, if we study both with each other, ठीक है, then this condition is known as veterinary thyrogeniology. That means the male reproductive system and the female reproductive system studies with each other, okay. That condition is known as veterinary thyrogeniology, the branch of medicine in which the andrology, gynecology and obstetrics and artificial insemination are studied, okay. Now what do you mean by puberty? Puberty, it is the age of sexual maturity when the reproductive organs of the animal become functional and the formation of germ cell starts in them, okay. Puberty, the age of the animal, when he or she, okay, the he animal or the she animal will get sexual maturity, it is the age of sexual maturity when the reproductive organs of the animal becomes functional, okay. As you know very well, from the birth the reproductive organs are not functional, and all about in the, we can say, in the human male, and at the age of 12, 13, 14 in the male, in the human male, at the age of 12 to 14 the male reproductive system functional, specifically we can say the testicles start formation of sperm, okay. So we can say in a same way that in the animal, the age when their male reproductive or female reproductive system will become functional. The female reproductive system like ovary starts formation of ova, or in the male reproductive system where the testis start the formation of sperm, okay. It is the age of sexual maturity when the reproductive organs of the animal, if he is male or female, okay, become functional, and the formation of germ cell. What do you understand by the germ cell? The germ cells are, it may be, it's either ova or sperm. What do you understand by the germ cell? Germ cells either ova or sperm, okay. Either ova
or sperm. Next, estrus, a time in which the female animal is attracted to the male animal for further mating desire. Estrus. Estrus, likewise we can say in the animals specifically, we can say that animals have not all the time sexual desire. उनके अंदर पूरे मंथ में सेक्सुअल डिजायर नहीं होती है, एक स्पेसिफिक टाइम आता है देन फीमेल एनिमल हैव सेक्सुअल डिजायर, फीमेल allowed the male for the mount on them at time in which the female animal is attracted to the female, attract to the male animal or further mating desire. Okay, तो specific time आता है, estrus is the specific time when female animal attracts the male animal for sexual or for mating purpose. Anestrus, it is a condition in which the animal does not show complete heat or heat symptoms or does not have an estrus cycle. Sometimes anestrus, what do you understand by the anestrus? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक anestrus, बहुत लंबे समय तक female have not any kind of sexual desire for the towards the male. उसके अंदर कुछ इस तरीके के हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, तो वो लंबे समय तक एनेस्ट्रस कंडीशन में रहती है और उस समय वह हीट में नहीं आती है और किसी प्रकार की सेक्सुअल डिजायर शो नहीं करती है. गेस्टेशन पीरियड, द टाइम बिटवीन कॉन्सेप्शन टू डिलीवरी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड. मैंने आपको पहले ही बताया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द गेस्टेशन पीरियड, द टाइम बिटवीन द फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन हुआ एंड टिल टू द पार्चुरेशन, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द पार्चुरेशन, द होल पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड. Now the next thing is fertilization. The joining of the sperm and egg in the ampulla of the oviduct is known as fertilization. What do you understand by the fertilization? Fertilization, after coitus, male discharge their sperm in the female reproductive system. Okay, then the sperm move towards the fallopian tube, and the fallopian tube have a part that is known as ampulla. Okay, so look at this. This is the, if these are ovaries, look, if these are ovaries and this is the ova, ovum, and this is the sperm, and this part is known as ampulla. So what do you understand by the fertilization? Fertilization, a process in which the sperm and ova mix with each other. The joining of the sperm and egg in the ampulla of the oviduct, this is the oviduct, okay, is known as fertilization. फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जहां पर स्पर्म और ओवा एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो दैट कंडीशन इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन. व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्शन? नाउ वी आर स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्शन. कॉन्सेप्शन वी कैन से इट इज द टाइम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्शन? कॉन्सेप्शन, इट इज द टाइम व्हेन स्पर्म ट्रेवल्स थ्रू द वेजाइना. स्पर्म्स को कहाँ पर डिस्चार्ज किया जाता है? मेल के द्वारा इन द वेजाइना. ओके, तो देन स्पर्म्स ट्रेवल थ्रू द वेजाइना टू द यूट्रस और रिच टू द फैलोपियन ट्यूब. ऑफ कोर्स देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, दैट इज द वेजाइना, दैट इज द वेजाइना. स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करते हैं,
ट्रेवल करते हुए यूट्रस, ये क्या है वजाइना, ये क्या है यूट्रस, और ये क्या है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो वेजाइना से होते हुए यूट्रस एंड यूट्रस से होते हुए जब वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और वहां पर जाके एग को अगर वो फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो इट इज द टाइम व्हेन स्पर्म ट्रेवल्स टू द वेजाइना, स्पर्म ट्रेवल्स थ्रू द वेजाइना into the uterus and fertilize an egg in the fallopian tube. So conception, that is the whole time period sperm enters in the female reproductive system. Conception, what do you understand by the conception? A time period, the whole time period when sperm enters in the female reproductive system and fertilize the egg. The whole time period is known as conception. Okay, concept clear? The next thing is parturition. It is the end of gestation period. Okay, likewise we can say the gestation period in the cattle, that is 9 months. In the gestation period of the buffalo, that is about 10 months. Okay, so the end of gestation period, at the end of gestation period, the exit of the embryo, the exit of the fetus, okay, the normal exit of the fetus from the birth canal along with the embryonic membranes. Okay, what do you understand by the parturition? Parturition, it is the normal process when the gestation period is full. Okay, gestation period is completed, gestation period is completed. After the completion of gestation period, the normal exit of the fetus from the birth canal, जो birth canal है उससे fetus का normally बाहर आना, that is known as parturition, along with the embryonic membranes. Okay, embryonic membranes, we can say that is placenta. Okay, the placenta will come out from the birth canal with the embryo. The whole process is known as parturition. Parturition को अगर मैं normally समझाऊं तो gestation period जब complete हो गया तो उसके बाद में जो अंदर fetus है उसका normal जो birth canal से बाहर आना क्या कहलाता है? parturition और delivery कहलाता है. यूटोकिया, नॉर्मल डिलीवरी. अगर नॉर्मल पार्चुरेशन हो गया दैट इज यूटोकिया. डिस्टोकिया, मैंने आपको बताया डिस मीन्स समथिंग डिस्कम्फर्ट. डिस का मतलब क्या था? हम आपको बहुत जगह पर हम लोग देखते हैं लाइक डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ, डिसयूरिया, ओके, यूरिनेशन में तकलीफ. ओके, तो जस्ट लाइक दैट द डिस्टोकिया, abnormal delivery, discomfort in the parturition, abnormal delivery or abnormal or parturition. Okay, abnormal delivery or abnormal parturition. So discomfort in the parturition. Okay, now implantation, permanent attachment of the embryo with the uterus during gestation period. Okay, तो अब इसका हम मीनिंग क्या निकालेंगे? इसका मीनिंग है कि इम्प्लांटेशन कब होता है? लाइक स्पर्म और ओवा दोनों मिले. ओके, स्पर्म गया, ओवा था, ओवा से मिला, लाइक दिस इज ओवा, दिस इज स्पर्म, दोनों एक दूसरे से मिले, अब यहाँ पर जायगोट बन गया. ओके, अब ये जायगोट है, इसके अंदर क्या होगा? डिवीजन होता जाएगा, धीरे 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 करके नीचे की तरफ आता है, यूट्रस की तरफ आता है. और यूट्रस में एक कंडीशन आती है ब्लास्टोसिस्ट. क्या कंडीशन होती है? ब्लास्टोसिस्ट. वो कंडीशन क्या करते हैं? यूट्रस के अंदर अटैच हो जाती है, वो कंडीशन यूट्रस से जाके जुड़ जाती है. ओके, वो कंडीशन जो यूट्रस से जाके जुड़ रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन. द परमानेंट अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. जो वहां पर एम्ब्रियोनिक की डिफरेंट फेसेस होती है ना, तो मोरुला, ब्लास्टुला, जायगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ब्लास्टोसिस्ट वाली, ये जब यूट्रस से जाकर परमानेंट अटैच हो जाती है उसको क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं. आप लोग ध्यान में रखना.
Fertility, the ability of female animal to have a mating process with an opposite male animal. Normal pregnancies, normal implantation, nurturing the embryo during gestation and giving birth to the normal child after the completion of gestation period is called animals fertility. What do you understand by animal is fertile and animal is infertile? ठीक है, तो अगर कोई एनिमल फर्टाइल है दैट मीन्स कि वह उसके अंदर ओवम बन रहा है और नॉर्मल ओवम बन रहा है और उस ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है स्पर्म का और वहाँ पर बेबी डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर, मतलब उसका जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कंप्लीटली ओके है ना, और वहाँ पर नॉर्मल ओवम बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन हो रहा है और फुल जो बेबी है, फुल जो एम्ब्रियो है, फुल जो फीटस है वो कंप्लीटली रेडी हो रहा है, गेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट कर रहा है और गेस्टेशन कंप्लीट होने के बाद में अगर वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, दैट फीमेल एनिमल और मेल एनिमल जो उसकी प्रोसेस है, जो उसकी एबिलिटी है, दैट इज नोन एज फर्टिलिटी. द एबिलिटी ऑफ फीमेल एनिमल टू हैव अ मैटिंग प्रोसेस विद इन मेल एनिमल, किसी मेल एनिमल के साथ वो मीटिंग कर रही है. ऑफ कोर्स ना, अगर देखिए फर्टाइल बहुत तरीके से नहीं हो सकता. समटाइम्स द फीमेल एनिमल डोंट हैव एनी सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड्स द मेल, तो वो फर्टाइल कैसे हो सकती है अगर उसकी सेक्सुअल डिजायर ही नहीं है, चाहे वहाँ पर ओवम बने या ना बने. ओके, समटाइम्स वहाँ पर ओवरी के अंदर ओवा ही नहीं बन रहा, कभी कभी फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, ब्लॉक होती है, तो ओवा तो आ रहा है लेकिन वहाँ पर स्पर्म उसके पास पहुँच ही नहीं पा रहा, तो दैट कंडीशन आल्सो कंसिडर्ड एज इनफर्टाइल. ओके, कि वहाँ पर फर्टाइल है ही नहीं वो. कभी कभी यूट्रस है, वहाँ पर अटैचमेंट ही नहीं हो पाता, तब भी क्या होगी, वो फर्टाइल नहीं होगी, तो फर्टिलिटी नहीं होगी उसके अंदर. तो फर्टिलिटी का मीनिंग हो गया कि होल ऑर्गन्स आर ओके और जो कंप्लीट प्रोसेस है उसके अंदर ओवम बनने से लेकर वहाँ पर एम्ब्रियो के अटैचमेंट से लेकर नॉर्मल डिलीवरी तक सब कुछ एकदम परफेक्टली हो रहा है. दैट कंडीशन, दैट एबिलिटी ऑफ द फीमेल एनिमल इज कंसिडर्ड एज द fertility. The ability of female animal to have a mating process with male animal, normal उसकी pregnancy हो, normal implantation हो, nurture करे अपने बच्चे को gestation में और एक normal baby को वो जन्म दे. ठीक है. Infertility, infertility बहुत सारी की वजह से हो सकती है. Likewise अगर ओवरी के अंदर ओवा नहीं बन रहा है तो वो infertile है. ओके, और अगर वहाँ पर अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में कोई किसी भी तरह का ब्लॉक है, तो अभी क्या हो सकता है, वो वहाँ पर इनफर्टिलिटी है. ड्यू टू एनी डिजीज और एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर इज अ डिक्रीज इन फर्टिलिटी और समटाइम दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव इनसफिशिएंसी, है ना. तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है. यूट्रस की वॉल्स कई बार बहुत ज़्यादा थिक हो गई, वहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो अटैच नहीं हो पा रहा. कभी कभी हम देखते हैं कि ओवा बन ही नहीं पा रहा है. कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि ओवा जो है कुछ मेम्ब्रेन्स के अंदर कवर होके रह जाता है. ठीक है, तो ओवा वहाँ से निकल ही नहीं पाता, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो ओवा वहाँ वो फिक्स एक स्टेज होती है, हीट पीरियड हो तो हीट पीरियड में रह जाएगी और कभी वापस अगर नहीं आ रही तो कभी हीट आती नहीं है. तो ये सारी जो कंडीशंस है वो किस में आएगी, इनफर्टिलिटी के अंदर आती है. कभी कभी फीमेल एनिमल के अंदर ऑर्गन ही पूरे डेवलप नहीं होते, तो फीमेल और वो एनिमल क्या कहलाएगा, इनफर्टाइल कहलाता है. तो ये इनफर्टिलिटी है. एक स्टर्लिटी होती है. इफ देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ फर्टिलिटी देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी. एंड कंप्लीट लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनिमल, दिस इज कॉल्ड स्टर्लिटी. तो दो तरह की कंडीशन हो गई. ठीक है ना. एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन तो कहती है इनफर्टाइल. इनफर्टाइल एक रिवर्सिबल प्रोसेस. हम उसको अगर इनफर्टाइल है, लाइकवाइज मैं कहता हूं कि ओवा है, ठीक है ना, ओवा के ऊपर अगर ओवेरी है, ओवेरी के ऊपर ओवा था और वो वहीं पर मेम्ब्रेन के अंदर बंद होकर रह गया. ठीक है, तो हम कुछ हार्मोन्स देंगे, वो मेम्ब्रेन हटेगी, वहाँ से ओवा रिलीज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एनिमल वापस फर्टाइल हो जाएगा. फैलोपियन ट्यूब में किसी तरीके का ब्लॉक था, हमने उसको हटा दिया. ठीक है, अब फैलोपियन ट्यूब फुली फंक्शनल हो जाएगी, तो वो क्या हो गया, वापस फर्टाइल हो जाएगा. तो इनफर्टिलिटी में भी रिवर्सिबल बट स्टेराइल कंडीशन है. स्टेराइल मीन्स उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई पार्ट ही ऐसा है ही नहीं, या तो उसमें यूट्रस नहीं हो या फैलोपियन ट्यूब नहीं हो या फिर ओवेरी नहीं हो. मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्टेराइल कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है,
तो कोई भी उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो फुली डेवलप ही नहीं होते ताकि उसके अंदर स्पर्म और ओवा बन सके, ठीक है ना, ताकि उसमें स्पर्म और ओवा बन सके। तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, स्टरिलिटी कहते हैं। द कंप्लीट लॉस ऑफ फर्टिलिटी, इट इज कंसिडर्ड एज स्टरिलिटी। Teratology, that part of embryology and pathology in which an abnormal development or undesirable trait is produced from the embryo to the infant, the study is called teratology. Teratology का सिंपली मीनिंग अगर आपको बताऊं कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन से लेकर अगर गेस्टेशन के कंप्लीट होने तक एम्ब्रियो में अगर किसी भी तरीके को चेंजेस आ गए, लाइकवाइज टेराटोलॉजी किसी बच्चे के अगर 2 सिर है, ठीक है ना, तो नॉर्मल से डिटोरिएशन होना, द डिटोरिएशन फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, टेराटोलॉजी कहलाता है। लाइक 2 सर हो गए, एक हाथ गायब हो गया, तो वो टेराटोलॉजी है ना। तो ये जो कंडीशंस है, द पार्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड पैथोलॉजी इन विच एन एबनॉर्मल डेवलपमेंट, बेबी बच्चे का क्या हो रहा है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर कहीं कोई पार्ट एक्स्ट्रा हो गया या फिर कहीं कोई पार्ट है ही नहीं, तो वो एबनॉर्मलिटी की स्टडी करना, वो एबनॉर्मलिटी की स्टडी करना क्या कहलाता है, टेराटोलॉजी कहलाता है। ओके, नाउ फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स, व्हेन द बेबी पुशेस, ऑफ कोर्स फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है बच्चा, जब व्हेन द बेबी इज फुली डेवलप्ड, ठीक है, एंड द गेस्टेशन पीरियड इज कंप्लीट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, gestation period is complete means in the cattle that is 9 months, and the buffalo that is almost 10 months, and the sheep and goat that is almost 5 months, ठीक है ना, and the bitch in the cat that is about 6 to 2 months। तो अगर gestation period complete हो जाता है, ठीक है ना, then जो उसके जो अंदर जो बेबी है या फिर जो फीटस है वो क्या करता है, सर्विक्स पर अपने पैर लगाता है ऐसे, ठीक है ना, तो उसकी वजह से सर्विक्स जो होती है वो धीरे धीरे करके खुलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स। व्हेन द बेबी पुशेस द सर्विक्स ड्यूरिंग द लेबर एज हिज फीट टच द सर्विक्स स्टिमुलेट्स द सर्विक्स फॉर द ओपनिंग, ठीक है ना, जब फीटस है वो फुल्ली डेवलप हो गया, जो अंदर बेबी है या फीटस है वो फुली डेवलप हो जाता है, तो सर्विक्स जो कि क्लोज होती है एकदम से, ठीक है ना, टाइटली क्लोज होती है, तो उस पर अपने पैर जब इस तरीके से मारता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, वो सर्विक्स धीरे 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 ओपन होना स्टार्ट हो जाती है और उसको रास्ता देती है बाहर आने के लिए। तो उसके फिट मारने की वजह से, उसके पैर मारने की वजह से अगर सर्विक्स ओपन हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स, फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स। ओके, the next is buller. Female animal shows heat-like symptoms but does not allow other male animal to climb on itself but climbs on other female like male bull. This process is called buller. तो buller का मतलब क्या हो गया, कभी कभी some of the females behave like a male, when the female animal behave like a male animal. Okay, इसमें क्या होता है, the female is in heat, female is in heat but she doesn't allow the male animal to mountain on it, ठीक है, वो अपने ऊपर माउंट करने के लिए उस मेल एनिमल को अलाउ नहीं करती, बट वो खुद जो दूसरी फीमेल एनिमल है उनके ऊपर माउंट करती है, उनके ऊपर क्लाइंब करती है। तो फीमेल एनिमल शोज हीट लाइक सिम्टम्स बट डट नॉट अलाउ अदर एनिमल टू क्लाइंब और माउंट, वी कैन से, ठीक है ना, जो मेल एनिमल है उसको खुद के ऊपर माउंट करने के लिए अलाउ नहीं करती बट खुद दूसरी फीमेल एनिमल के ऊपर माउंट करती है। तो ये क्या बिहेवियर है उसको हो गया, उसका ये बिहेवियर है उसका हो गया, वो बुल की तरह बिहेव कर रही है, वो मेल एनिमल की तरह खुद बिहेव कर रही है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज बुलर, बुलर काउ। ओके, uterine inertia, inability to eject the embryo from the uterus normally, that is there is no normal contraction process in the uterus. Like uterine inertia क्या होता है, look, that is the process in which the fetus comes out from the female body. Look, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने आपसे कहा कि जब जो फीटस है वो सर्विक्स पर अपने पैर मारता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर सर्विक्स धीरे धीरे ओपन होने स्टार्ट होती है। तो ऐसा नहीं कि बच्चा चल के बाहर आता है। ओके, द यूट्रस ऑफ द फीमेल, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टेड लाइक दिस, द यूट्रस हैव
पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और वो बच्चे को पुश करते हैं बाहर की तरफ पुश करते हैं। बट समटाइम्स, कभी कभी होता है कि फीमेल का जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते ही नहीं है। क्या होता है, फीमेल के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते ही नहीं है, तो जो बच्चे होते हैं, जो फीटस होता है वो बाहर की तरफ नहीं आता। द अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं एकदम सिंपल वे के अंदर, द अब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। The absence of contraction in the uterus at the time of parturition is considered is known as uterine inertia. यूट्रस क्या हो गया, एकदम सुस्त पड़ गया, तो अब उसके अंदर किसी तरीके का संकुचन नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा। दैट्स व्हाई वी विल से दैट द absence of the contraction and the absence of the peristaltic movement in the uterus is known as the uterine inertia at the time of parturition. तो बच्चे बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा नॉर्मली बिच के अंदर होता है, पिग में होता है। देन वी विल एडमिनिस्टर द ऑक्सीटोसिन, IV, IM, हम उसको उसके अंदर हो सकता है ऑक्सीटोसिन बन नहीं रहा हो, तो हम उसको फिर बाहर से ऑक्सीटोसिन देते हैं ताकि यूट्रस में फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो और बच्चे बाहर की तरफ आ जाएं। Repeat breeder, the cow which does not get pregnant even after artificial insemination with the semen of male bull having good fertility in the normal cycle. Repeat breeder, what do you understand by the repeat breeder? Repeat breeder is normally considered कि sometimes क्या कभी-कभी क्या होता है कि हमने उसको artificial insemination कराया या फिर natural insemination कराया, बट वो वहाँ पर कॉन्सेप्शन नहीं हो पाया। दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एग और ओवा का, और वो नेक्स्ट टाइम वापस हीट में आ गई। नॉर्मली जैसे एक बार हीट में आ गई, फिर वापस हीट में आ गई, फिर नेक्स्ट मंथ वापस हीट में आ गई। तो हर मंथ अगर कोई बार अगर कोई कैटल, कोई बफेलो, कोई शिप, कोई गॉट अगर बार हीट में आती है, ठीक है ना, और वहाँ पर कॉन्सेप्शन नहीं हो पाता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा, बच्चा वहाँ पे ठहर नहीं पा रहा है, ठीक है ना, तो वो जो एनिमल है उसको कहते हैं रिपीट ब्रीडर कहते हैं। हमने कहा कि नेचुरल इंसेमिनेशन हो चाहे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो, अगर हुआ और होने के बाद अगर वहाँ पर एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट नहीं हुआ और नेक्स्ट मंथ वो वापस हीट में आ जाए, हमने फिर कराया, फिर उसके बाद में वो वापस हीट में आ जाए, तो वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, बेबी डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, रिपीट ब्रीडर। द काउ विच does not get pregnant even after artificial insemination with the semen of male having good fertility in the normal cycle. Nymphomania, due to the excess of the estrogen hormone in the follicular cyst, the female animal stays in the stress for the long time and with severe symptoms and called nymphomania. Like निम्फोमैनिक कंडीशन और एक और कंडीशन है आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि निम्फोमेनिया का मीनिंग क्या है। यहां पर क्या होता है कि जैसे जस्ट लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, हम आगे जब रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे दिस इज द ओवेरी। ओवेरी में क्या बनता है, एग बनता है, और ये एग यहाँ पर बाहर आता है और वो फिर फैलोपियन ट्यूब में एंटर होता है। दिस इज द नॉर्मल साइकिल। ओके, नाउ इफ दिस ओवा अरेस्ट हेयर, अगर ये ओवा यहीं पर रह जाए, ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंची नहीं, LH सर्ज होता है, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, इस ओवा को यहाँ से फ्री करता है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंट्री देने की कोशिश करता है। ये कब होगा, LH हार्मोन
जब आता है वो क्या करता है, इस ओवा को ओवेरी से फ्री करवाता है। आपको हम आगे बताएंगे। इस ओवम जो एग यहाँ पर जो बना है उसको क्या करता है, ओवेरी से फ्री करवाता है और फेलोपियन ट्यूब के अंदर भेजता है। परंतु समटाइम्स द एस्ट्रोजन लेवल्स आर हाई इन द बॉडी, ठीक है, ड्यू टू द हाई एस्ट्रोजन लेवल एलएच सर्च नहीं हो पाता, एलएच हार्मोन वहाँ नहीं आ पाता, तो ये जो है एग यहीं पर रुक जाता है, यहीं पर रुक जाता है। और जो कैटल है वह हीट के अंदर ही लंबे समय तक रहती है। मीन्स ये एग यहीं पर रहेगा, एलएच सर्च नहीं होगा, ठीक है। तो कैटल हीट में आ रखी है और वह नॉट ओनली फॉर द 2 days 3 days, वह 10 20 30 फॉर द मंथ्स, जब देखो जब वो हीट में रहेगी और हीट के साइन शो करती है। एंड दैट जो एनिमल, फीमेल एनिमल इज कंसिडर्ड एज द निम्फोमैनिक एनिमल। निम्फोमैनिक एनिमल का सिंपली मीनिंग होता है कि स्ट्रेस के अंदर वो लंबे समय तक रहती हैं। ऑफ कोर्स जब तक ये एग यहाँ से रिलीज नहीं होगा तब तक वो हीट में ही रहेगी, उसके वैसे ही डिस्चार्ज आता रहेगा। एंड जो मेल एनिमल है वो वैसे उस पर माउंट करने की कोशिश करता रहेगा और वो अलाउ भी करती रहेगी। बट मेल एनिमल के माउंट करने से होगा क्या, स्पर्म्स तो आएंगे बट एग तो यहीं पर अरेस्ट हो रखा है, वह फेलोपियन ट्यूब में कभी पहुंचता ही नहीं है, तो वहाँ पर कभी कॉन्सेप्शन होता ही नहीं है, कभी फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। तो दैट फीमेल एनिमल दैट इज अरेस्ट in the estrus, okay, and always showing the signs of heat, that is considered as nymphomanic due to the excess of estrogen hormone। estrogen hormone की अधिकता की वजह से the follicular system, यहाँ पर the animal stays in the stress or in the heat for a long time, which severe symptom is called as nymphomania। Superfetation or superfecundation. Now there is two different terminology, the superfetation and the superfecundation। The convinced animal gets fertilization again after coming into stress। Superfetation, superfetation का लिटरल मीनिंग मैं आपको बताऊं तो ऐसा होता है जैसे कि एनिमल स्ट्रेस में आया, उसके हमने एआई की, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया या नेचुरल इंसेमिनेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद में वहाँ पर बच्चा ठहर गया, यानी वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो गया। अब इम्प्लांटेशन होने के बावजूद एनिमल वापस स्ट्रेस में आ जाता है। अगर फीमेल के कंसर्न में बोलूँ, अगर ह्यूमन के कंसर्न में बोलूँ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया, ठीक है, और उसके बाद में वहाँ पर कॉन्सेप्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और बच्चा इम्प्लांट हो गया। उसके बाद में वापस मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आना चाहिए, बट वापस मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाता है और फिर वापस वहाँ पर एक दूसरा बच्चा और ठहर जाता है, वहाँ पर एग भी आता है, स्पर्म भी आते हैं और सेकेंड बेबी भी वहाँ पर रुक जाता है। तो सुपरफिटेशन, फीटस के ऊपर फीटस, सुपरफिटेशन, फीटस के ऊपर फीटस आ गया, ठीक है ना। कैसे आ गया, ये डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिफरेंट स्ट्रेस के अंदर हो रहा है। मान लीजिए 1 जन को एनिमल हीट में आया, 1 जनवरी को एनिमल हीट में आया, यहाँ पर ओवा और स्पर्म मिले और फर्टिलाइजेशन हो गया और यूट्रस में इम्प्लांटेशन भी हो गया, हो गई सारी प्रोसेस। अब 21 जन को एनिमल रिटर्न आ जाता है हीट में, वापस वहाँ पर क्या होगा, ओवा होगा, स्पर्म होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये क्या कहा जाता है, फीटस के ऊपर, और सुपर मतलब फीटस के ऊपर फीटस। मान लीजिए कि 1 जन को एनिमल हीट में आया, वहाँ पर क्रॉस करवाया अपन ने, क्रॉस करवाने के बाद वहाँ पर स्पर्म और ओवा मिल गए, क्योंकि वहाँ ओवा भी था, स्पर्म पहुँच गए और उनका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया,
और जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो गया, ठीक है। बट नेक्स्ट वापस एनिमल क्या आ जाता है, हीट में आ जाता है, मतलब ऑलरेडी उसकी यूट्रस में बेबी है बट वो फिर भी हीट में आ जाता है और फिर से वहाँ पर क्या हो जाता है, एक नेक्स्ट बेबी ठहर जाता है, तो उसको बोलते हैं सुपरफिटेशन। सुपरफेकंडेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ अनदर एग इन ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड फीमेल इन द सेम स्ट्रेस। तो ये कंडीशन क्या कहती है, जैसे स्ट्रेस में है एनिमल, ठीक है ना, अब वहाँ पर एक से ज़्यादा अंडे, एक से ज़्यादा एग्स अगर फ्री हो गए, समटाइम्स कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जैसे नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कंडीशंस क्या होती है, 2 ओवेरीज, एक बार ये ओवेरी, एक साइकिल में ये ओवेरी फंक्शनल होती है, एक साइकिल में ये ओवेरी फंक्शनल होती है। बट कभी कभी, ठीक है, कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से दोनों ओवेरी एक साथ फंक्शनल हो जाती है, दोनों से एग आ जाते हैं, दोनों पर ही स्पर्म पहुंच जाते हैं और दोनों ही क्या हो जाती हैं वहाँ पर, दोनों ही जो एग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं वहाँ पर फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक ही साइकिल के अंदर, सुपरफिटेशन में तो 2 डिफरेंट साइकिल आए थे, एक पहला स्ट्रेस आया था, फिर एनिमल वापस स्ट्रेस में आ जाता है, तो एक तो यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेस है, और यहाँ एक ही स्ट्रेस के अंदर एक से ज़्यादा एग्स आए, वापस वहाँ पर स्पर्म्स आए, तो वहाँ पर क्या हो गया, इज ऑलरेडी फर्टिलाइज फीमेल इन द सेम स्ट्रेस। जैसे मेल आया, एक एग आया, वहाँ पर मेल आया, उसने उसको फर्टिलाइज कर दिया स्पर्म ने, फिर दूसरा एग आता है उसी स्ट्रेस के अंदर, फिर से दूसरा एग आता है, फिर से मान लीजिए कोई मेल का स्पर्म्स आए, और तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, इसमें 2 डिफरेंट स्ट्रेस इन 2 डिफरेंट स्ट्रेस, 2 डिफरेंट स्ट्रेस, और यहाँ पर इन ए सिंगल स्ट्रेस, एक से ज़्यादा बच्चे, यहाँ पर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो दैट इज सुपर फेकंडेशन। टर्मिनोलॉजी ऑफ स्पर्म evaluation, एस्पर्मिया, voiding of sperm concentration. Aspermia means there is no sperm, voiding of semen concentration. Aspermia means there is no semen, na. Hypospermia, decreased semen volume. Hypospermia, hypo always considered as the low concentration, always considered as the low concentration. तो लो कंसंट्रेशन और लो वॉल्यूम ऑफ द सीमन। हाइपरस्पर्मिया, इंक्रीज्ड सीमन वॉल्यूम, इंक्रीज्ड सीमन वॉल्यूम। एज़ोस्पर्मिया, लो स्पर्म कंसंट्रेशन। नॉर्मोजूस्पर्मिया, नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन। ऑलिगोजूस्पर्मिया, लो स्पर्म कंसंट्रेशन, ठीक है। पॉलीजूस्पर्मिया, इंक्रीज स्पर्म कंसंट्रेशन। एक्सटेनोजूस्पर्मिया, लो स्पर्म मोटिलिटी। Necrozoospermia, all spermatozoa are dead. Teratozoospermia, increased percentage of abnormal spermatozoa. तो एस्पर्मिया क्या है, सीमन कंसंट्रेशन है, वो सीमन जो है वो completely absent कह सकते हैं। एस्पर्मिया means there is complete absence of semen, और the second thing is hypospermia, डिक्रीज्ड सीमन वॉल्यूम, ठीक है, डिक्रीज्ड सीमन वॉल्यूम। तो हाइपोस्पर्मिया, हाइपर में होगा इंक्रीज्ड सीमन वॉल्यूम। सीमन क्या होता है, जो अपने पास जो डिफरेंट प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और जो ग्लैंड है उनका सिक्रेशन प्लस स्पर्म दोनों मिलकर क्या करते हैं, सीमन बनाते हैं। सीमन मीन्स वहाँ पर कुछ सिक्रेशंस है और उनके अंदर स्पर्म बैठे हैं, तो वो दोनों मिलाकर सीमन कहलाता है। तो सीमन का वॉल्यूम अगर कम है तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोस्पर्मिया, और सीमन का अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो अपन उसको बोलेंगे हाइपरस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म। एज़ोस्पर्मिया मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन, ठीक है। जू जो वर्ड होगा वो हमेशा स्पर्म्स के नंबर को बताएगा। तो एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमन,
सीमन में केवल क्या आ रहा है, सिक्रेशन आ रहा है, ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन है या जो अदर ग्लैंड्स है लाइक बल्बोयूरेथ्रल और इनका जो सिक्रेशन है वही आ रहा है और बाकी स्पर्म वहाँ पर नहीं है। तो एज़ोस्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमन। नॉर्मोजोस्पर्मिया, तो नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन है सीमन के अंदर, तो नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन। ऑलिगोजोस्पर्मिया, लो, स्पर्म की नॉर्मल काउंट जितनी होनी चाहिए उससे अगर बहुत कम हो रहे हैं तो लो स्पर्म कंसंट्रेशन इन द सीमन। पोली मतलब इंक्रीज स्पर्म कंसंट्रेशन, एस्थेनो मतलब लो स्पर्म मोटिलिटी। तो एस्थेनो जो स्पर्मिया मतलब कि जो स्पर्म है उनकी मोटिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि उनको वेजाइना से चलकर कहाँ तक पहुँचना है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचना है। फैलोपियन ट्यूब में एग बैठा रहेगा, उसको वहाँ जाकर फर्टिलाइज करना है। तो उसको क्या करना है, फर्टिलाइज करना है। तो अगर उसकी मोटिलिटी अच्छी नहीं होगी तो वो उनको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, और अगर वो उसको फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा एग को, तो ऐसे स्पर्म किस काम के, वहाँ पर क्या आ जाएगी, इनफर्टिलिटी आ जाएगी। तो एस्थेनोजोस्पर्मिया, लो स्पर्म मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब होगा चलना। नेक्रो मतलब स्पर्मेटोजोआ जितने भी होंगे वो सारे डेड है, स्पर्म्स तो है। यहाँ पर एज़ोस्पर्मिया के अंदर तो स्पर्म ही नहीं है। एज़ोस्पर्मिया हैव द एब्सेंस ऑफ द स्पर्म्स। नेक्रोजोस्पर्मिया मींस स्पर्म्स तो है बट ऑल स्पर्म्स आर डेड, ऑल स्पर्म्स आर डेड। ओके। टेरेटोजोस्पर्मिया, टेरेटो का मतलब मैंने आप बताया था, दैट इज समथिंग बैड, कुछ बुरा है, कुछ अलग हो गया। टेरेटोलॉजी के अंदर अपन इसी की तो स्टडी करते हैं कि कुछ चेंज हो गया, नॉर्मल से डिटोरिएशन, नॉर्मल से डिटोरिएशन, ठीक है। तो इंक्रीज स्पर्म परसेंटेज ऑफ एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ। एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ, मान लीजिए स्पर्म है, उसके डबल हेड हो गया, उसकी दो पूंछ हो गई। स्पर्म की स्ट्रक्चर अपन देखेंगे, स्पर्म है टेल, मिड पीस, सॉरी हेड, मिड पीस एंड टेल। तो अगर टेल्स अगर बाइफरकेट हो गई, टू हो गई, हेड अगर टू हो गए तो दैट आर कंसिडर्ड एज द टेल अगर गायब हो गई तो ऑल दिस स्पर्म्स आर कंसिडर्ड एज द abnormal sperms and you know that sperms are also known as spermatozoa। तो अगर मैं sperm बोलूं या spermatozoa बोलूं दोनों एक ही बात है। ओके। नाउ हमने आज बहुत अच्छे से जो स्टार्टिंग की टर्मिनोलॉजी जो है हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की। लाइक यू कैन सी अगेन व्हाट इज वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स, हमने क्या जो कि गेस्टेशन पीरियड, पैस्चुरेशन, पोस्टपार्टम जो स्टेजेस हैं उन सब की बात करते हैं। एंड्रोलॉजी के अंदर अपन क्या बात करते हैं, हमने इसकी बात की थी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी दोनों की बात करते हैं। थ्रियोजिनोलॉजी जिसमें मेल और फीमेल सबकी बात करते हैं। प्यूबर्टी एक एज होती है जब सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी वहाँ पर जब स्पर्म और ओवा बनने लग गए उस एज को अपन क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। स्ट्रेस एक साइकिल होता है जब फीमेल अपनी तरफ मेल को अट्रैक्ट करती है, माउंट करने के लिए अलाउ करती है। एनेस्ट्रस अगर ये चीज़ अब्सेंट हो। गेस्टेशन पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन से लेकर, कॉन्सेप्शन से लेकर जो पार्चुरेशन है वहाँ तक का जो कंप्लीट पीरियड है वो क्या कहलाता है, गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। फर्टिलाइजेशन बता दिया, कॉन्सेप्शन बता दिया। कॉन्सेप्शन इट इज़ द टाइम व्हेन स्पर्म ट्रेवल्स थ्रू द वेजाइना into the uterus and fertilize the egg in fallopian tube. That is parturition. Eutokia normal delivery or normal parturition. Dystocia abnormal delivery or abnormal parturition. Implantation, वहाँ पर एम्ब्रियो का यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होना, उससे अटैच होना। फर्टिलिटी, अगर कोई एनिमल में सारी कंडीशंस नॉर्मल है और वो एक बच्चे को जन्म दे रही है तो वो फर्टाइल है एंड दैट एबिलिटी इज कंसीडर्ड एज द फर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो फर्टाइल नहीं रह पा रही है तो वो क्या कहलाएगी, इनफर्टिलिटी। और एक होता है स्टेराइल, स्टेराइल में कंप्लीटली वो कभी माँ बन ही नहीं सकती, तो उस कंडीशन को कहते हैं देयर इज नो एबिलिटी टू हैव एन फीमेल to become a mother, that is considered as sterile, and that stability is considered as the sterility. Teratology, something abnormal and the embryo, the study of the abnormal embryos. Ferguson reflex, I already elaborate all these things. Buller, if a female
behave like a male, that is buller cow, buller cattle. Uterine inertia, when the uterus have no contraction, the uterus have no contraction for the parturition. Repeat breeder, nymphomania, superfetation, in two different stress, two babies. When already a baby is there, already a fetus is or embryo is there, superfecundation and all these terminologies. Okay, all the best to all of you. बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई रखो. गायनेकोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे से समझने आने वाला भी है. आप बस मेरे साथ पढ़ते जाएं, समझते जाएं. कोई भी अगर डाउट हो तो पूछें, हम आपको ज़रूर बताएंगे. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. ऑल द बेस्ट.